Hello students, in this video I am going to start third part of this chapter, that is the Civil Disobedience Movement 1930. Reasons behind the launching of this movement. First point, reaction towards the Simon Commission. Montague Chelmsford reforms failed to satisfy the national aspirations of the Indians. In November 1927, Conservative government of Britain sent the Indian Statutory Commission, popularly known as the Simon Commission. मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स तो फेल्ड हो गया था इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, बट इन नवंबर 1927 कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की थी उन्होंने इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन भेजा, जिसको हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं, आफ्टर इट्स चेयरमैन टू इंडिया टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया. इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए. इट वॉज कॉम्पोज्ड ऑफ 7 members headed by Sir John Simon. So the Simon came India. The Simon Commission was to examine the working of the reforms introduced in India by the Montague Chelmsford reforms or the Government of India Act 1919. So this commission was set up to examine the working of this Act 1919. It was also there to suggest further constitutional reforms if required. But it was an all-white commission. White commission, I mean all members were English people. No Indian, not a single Indian member in that commission. So it was taken as a direct insult to the people of India. Therefore, most of the political parties of India, like the Indian National Congress, Muslim League, Hindu Mahasabha, they decided to boycott. Boycott means they decided not to participate in this Simon Commission, because not a single Indian member in that commission. All were white people. And his team landed at Bombay on 3rd February 1928. All major cities and towns observed a complete हड़ताल on that day. तो जिस दिन ये पूरी टीम 3rd February 1928 में बॉम्बे आई, उस दिन सारी सिटी, सारे टाउन्स में हड़ताल लग गई पूरे दिन के लिए. ब्लैक फ्लैग विथ स्लोगन गो बैक कमीशन रोड पे लोग शाउट कर रहे थे. During the protest movement, police made lathi charge, and many distinguished Indian leaders like Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru and Govind Ballabh Pant, they were beaten mercilessly. Consequently, Lala Lajpat Rai died. और तभी वहीं पे लाला लाजपत राय उसी लाठी चार्ज में और बहुत ज़्यादा जब मारपीट हो रही थी तो लाला लाजपत राय ख़त्म हो गए ड्यू टू द चेस्ट इंजरी कॉज्ड बाय लाठीज ऑन 17th November 1928. This incident shocked the Indians and motivated them to take action. Recommendations of the Simon Commission. तो अब साइमन कमीशन जो आया था to fix the political future of India, तो क्या रिकमेंडेशन था, क्या साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया? फर्स्ट इज डायरकी. Diarchy should be abolished and there should be complete autonomy in the provinces including the Department of Law and Order. तो वो provinces को complete autocracy दे रहे थे. Second, provincial legislative council should be enlarged. मतलब और ढेर सारे members होने चाहिए. High courts should be under the administrative control of the government of India. Fourth, the Governor General should select and appoint members of his cabinet. ये सारी चीज़ें साइमन कमीशन ने रिकमेंड करी है फॉर द बेटर पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया. ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स शुड कंटिन्यू टू स्टे इन इंडियन रेजिमेंट्स. जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो इंडिया में रहेंगे. कम्यूनल रिप्रेजेंटेटिव वॉज टू कंटिन्यू. कम्यूनल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू होता रहेगा. सो here is a picture of Sir John Simon. इनकी टीम आई थी इंडिया में. Then fifth, there should be a federal government in the center consisting of British India and princely states.
अब इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं. लॉर्ड ब्रिकनहेड, द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्लेम्ड दैट इंडियंस वर इनकैपेबल. वो क्लेम करते हैं कि इंडियंस कैपेबल नहीं हैं टू फ्रेम अ सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल. है ना. तो उनके कहने का मतलब है कि इंडियंस बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है कि एक अच्छा सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम कर सकें जो सबके ऊपर अप्लाई हो. दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड. और तभी इंडियन लीडर्स ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता. एंड ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1928 टू फाइनलाइज अ स्कीम पॉपुलरली नोन एज नेहरू रिपोर्ट आफ्टर मोतीलाल नेहरू हु वॉज इट्स प्रिंसिपल ऑथर. मोतीलाल नेहरू ने ही रिपोर्ट बनाई, मोतीलाल नेहरू ने ही बनाई वो चीज़, इसीलिए उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं. तो उस नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रिकमेंडेशंस था. फर्स्ट, डोमिनेंट स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर वॉज टू अटेन्ड. ब्रिटिश एम्पायर के रहते हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए कि हम अपने इस राज्य को खुद रूल करें. रिकमेंडेड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, equal rights for women, freedom to form union. Seats would be reserved for the Muslims at the central level and in provinces in which they were in a minority. Fourth, recommended a federal setup of India. Federal structure of government चाहिए. That is the linking of the princely states with the British India. Gandhi ji in 1928 at the annual session of the Congress, इन्होंने भी हेल किया रिपोर्ट को. इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये हमारी जो रिपोर्ट है, जो नेहरू रिपोर्ट है, इसको तुरंत ही लागू कराएं. However, objectives were raised by some of the leaders of the Muslim League, Hindu Mahasabha and the Sikh League. Besides some young members of the Congress like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they were dissatisfied with its declaration of dominant status. क्योंकि dominant status से वो सेटिस्फाई नहीं थे बिकॉज देयर स्लोगन, क्योंकि उनका स्लोगन था, वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहते थे. और नेहरू जी ने डोमिनेंट स्टेटस की बात करी थी. तो कुछ यंग लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड. डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज. यस, लाहौर में सेशन हुआ इन दिसंबर 1929 एंड दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज or complete independence was the goal of the Congress. The Congress passed a resolution for boycotting the first round table conference and decided to launch a civil disobedience movement. First round table conference में बुलाया गया था, कांग्रेस ने मना कर दिया और उन्होंने बोला हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे. ऑन 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस was observed all over India and this program was a huge success. लॉन्च ऑफ द मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ. कैसे हुआ प्लीज़ आप लोग याद करिएगा. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स बिकॉज दांडी मार्च इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और दांडी मार्च के ही थ्रू, दांडी मार्च से ही स्टार्ट हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. In mid-February 1930, the working committee meeting at Sabarmati Ashram invested Gandhi ji with full powers. गांधी जी ने ही लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट दैट टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज चॉइस. उन्हीं के मुताबिक गांधी जी ऑन 2 मार्च 1930 ही रोट अ वेरी लॉन्ग लेटर टू द वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को. वो लेटर लिखते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. ऑन 12 मार्च गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग विद अ बैंड ऑफ 78 फॉलोअर्स ऑफ हिज साबरमती आश्रम. दे स्टार्टेड देयर मार्च फ्रॉम द Sabarmati Ashram and reached Dandi on the Gujarat sea coast to violate the salt law by collecting salt from the beach. तो साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचते हैं और वहाँ पे वो सॉल्ट लॉ को वियोलेट करते हुए अपने हाथ में उसी बीच से सॉल्ट को उठाते हैं और सॉल्ट लॉ का विरोध करते हुए वहाँ पहुँचते हैं. गांधी जी सिलेक्टेड द सॉल्ट लॉ. क्यों उन्होंने सॉल्ट लॉ को एक मुद्दा बनाया और सेलेक्ट किया कि यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें, ताकि सॉल्ट टैक्स, जो हमारे सॉल्ट पे टैक्स लगता है, वो हमारे सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को असर कर रहा है, चाहे वो पुअर हों. एंड बाय द टाइम गांधी जी रीच्ड दांडी,
ही हैड द होल नेशन अराउज्ड एंड एक्सपेक्टेड। और जब तक गांधी जी डांडी पहुँचेंगे तब तक पूरा नेशन को पता चल जाएगा और उनको फाइनल सिग्नल मिल जाएगा। On 6th April 1930, Gandhi ji inaugurated the civil disobedience movement by picking up a handful of salt. वो ब्रिटिश से चाहते थे कि सॉल्ट पे टैक्स हटाया जाए। नेक्स्ट, द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट बाई स्टार्ट हो गया बाय वियोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, सेकेंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, थर्ड बॉयकॉट ऑफ लीकर, फोर्थ नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स नहीं दिया जाएगा। द कोर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला कैसे? फर्स्टली इन तमिलनाडु सी राजगोपालचारी लेड दिस मूवमेंट एंड लेड अ सॉल्ट मूवमेंट। उन्होंने वहाँ से भी सॉल्ट लॉ मूवमेंट स्टार्ट किया। त्रिकनोपोली टू वेदारियनम ऑन द तंजोर कोस्ट से। अ बैंड ऑफ सत्याग्राहीज वॉकड ऑल द वे। बहुत सारे सत्याग्राही सिलहट से असम से नौखाली बंगाल कोस्ट तक गए। पीपल जॉइंड हड़ताल, demonstrations and the campaigns to boycott foreign goods and picketing of liquor shops had been a part of this movement. बहुत सारे लोग हड़ताल करते हैं, बहुत सारे लोग फॉरेन गुड्स की शॉप को जलाते हैं, तोड़ते हैं, लिकर शॉप्स को लिकर सामान निकाल के बॉनफायर कर रहे थे रोड पे। इन नागालैंड, रानी गेरिल्यू at the age of 13 responded to the call of Gandhi ji and revolted against the British rule. She was captured and given life imprisonment. नागालैंड में रानी गेरिल्यू थी। एट द एज ऑफ 13 उन्होंने गांधी जी के कहने पे ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, लेकिन वो कैप्चर्ड हो गई, वो बंदिश हो गई और उनको उम्र कैद दे दी गई। नेक्स्ट, इन द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र पीपल डिफाइड द फॉरेस्ट लॉ बाय कटिंग डाउन द ट्रीज। तो सेंट्रल प्रोविंस कर्नाटका में, महाराष्ट्र में लोगों ने फॉरेस्ट लॉ का विरोध किया ट्रीज को कट करके। मिसेस सरोजनी नायडू अलॉन्ग विद 2000 सत्याग्राहीज रीच्ड दर्शन सॉल्ट वर्क्स। इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस द मूवमेंट वॉज लेड बाय खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये हमेशा गांधी जी को फॉलो करते हैं। ही अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स नोन एज खुदाई खिदमतगर और पीपल इन रेड शर्ट्स अर्ज्ड लोकल फार्मर्स नॉट टू पे द लैंड रेवेन्यू। तो खान अब्दुल गफर खान अपने फॉलोअर्स के साथ, है ना, लोगों को लोकल फार्मर्स को अर्ज कर रहे थे, अर्ज मतलब फोर्स कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना है। सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट बंद कैसे हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, दे हैड नो अदर ऑप्शन, है ना, एक्सेप्ट ब्रिचुअलिटी एंड फोर्स, एक्सेप्ट लाठी चार्ज, अरेस्ट करना, ये सभी उनके पास ऑप्शन है। तो ऑल द लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी हैड बीन अरेस्टेड। गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया सारे लीडर्स के साथ। रिप्रेसिव लॉज पास्ड किए गए टू कर्टल ईवल लिबर्टीज ऑफ द पीपल। लिबर्टीज मतलब फ्रीडम, जो लोगों की फ्रीडम है उसको क्रश करने के लिए कई रिप्रेसिव लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए। सत्याग्राहीज वर बीटन मर्सिलेसली, जितने भी सत्याग्राहीज रोड में थे उनको खूब मारा गया। वुंडेड पर्सन्स वर थ्रोन इनटू सॉल्ट वाटर, और जिनको भी चोट लगी थी, सोचिए नमक वाले पानी में उनको फेंका गया ताकि और उनका जो वुंड है वो और जले। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। The first round table conference was held in London from 16th November 1930 to 19th January 1931. Very important point. The Congress did not attend it. First round table conference Congress attend नहीं करती है। Other parties and interest groups वो attend करते हैं। The British government was unwilling to grant dominant status. Besides no fruitful discussion, कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं निकलता है क्योंकि कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन ऑन 5th March 1931. लॉर्ड इरविन अग्रीड some conditions of Gandhi ji and at the same time Gandhi ji agreed some conditions of Lord Irwin. तो इन दोनों के बीच में जो भी अग्रीमेंट होता है उसको हम लोग
गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। लॉर्ड इरविन अग्रीड टू रिलीज ऑल द सत्याग्राहीज, सत्याग्राही जितने भी अरेस्ट हो गए थे सबको रिलीज कर देना है। सेकेंड, टू रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्राही, सत्याग्राही की जितनी भी प्रॉपर्टीज हड़पी गई हैं वो सब भी रिटर्न कर देना है। थर्ड, टू परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लीकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप, जितनी भी फॉरेन गुड्स सेल शॉप्स हैं, फॉरेन क्लॉथ शॉप्स हैं, लिकर शॉप्स हैं, पीसफुली हमें पिकेटिंग करने दें। तो लॉर्ड इरविन अग्रीड हो जाते हैं। टू अलाउ पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट, जो भी लोग कोस्टल एरियाज के आसपास, है ना, रिवर और कोस्ट एरियाज के आसपास, सी के आसपास रहते हैं, उनको अलाउ करें कि वो नमक बना सकें ताकि उनको खुद एम्प्लॉयमेंट हो। ऐसे ब्रिटिश कमा रही थी। तो ये 4 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये लॉर्ड इरविन अग्रीड हो जाते हैं गांधी जी के कहने पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू विदड्रॉ ऑल द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था तो जितने भी ऑर्डिनेंसेस, जितने भी रिप्रेसिव लॉ ऑर्डर इशू किया है गवर्नमेंट ने, है ना, टू क्रश द लिबर्टीज ऑफ द पीपल, वो सब वापस ले लिया जाए। ये सारी चीज़ें लॉर्ड इरविन अग्रीड कर लेते हैं। उसी टाइम, एट द सेम टाइम, गांधी जी 2 चीज़ें मानते हैं, टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं निकला था, बिकॉज देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस। तो अब लॉर्ड इरविन चाहते हैं कि गांधी जी अग्री करें, गांधी जी आए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी अग्रीड हो जाते हैं क्योंकि लॉर्ड इरविन ने इतनी सारी चीज़ें मान ली। सेकेंड थिंग, टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको भी स्टॉप कर देना है। गांधी जी मान जाते हैं कि ठीक है, अगर आप ये सारी शर्तें हमारी मान जाते हैं तो हम भी मान जाते हैं। तो ये अग्रीमेंट होता है गांधी इरविन पैक्ट में। नाउ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस from 7th September to 1st December 1931 was attended by Gandhi ji and he was the sole representative. सिर्फ वो अकेले कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे at the second round table conference. Conference discussed the communal questions and the representations of the minorities like the Sikh and Indian Christians in legislature. गांधी जी ने ये देखा कि सारे लीडर्स अपनी अपनी सीट के लिए काफ़ी कंसर्न थे, कोई इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था। तो गांधी जी इंडिया आ गए विदाउट एनी फ्रूटफुल डिस्कशन। कोई भी पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया को लेके बात नहीं कर रहा था, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ। रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव्ड अनफ्रूटफुल, तो इसीलिए गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। इंडिया में आते ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रिन्यूअल हो गया, मतलब रीलॉन्च हो गया, दोबारा स्टार्ट हो गया, बिकॉज गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम लंडन एम्प्टी हैंडेड विदाउट एनी फ्रूटफुल डिस्कशन. He wanted to meet the Viceroy, Lord Wellington. Now Gandhi ji want to meet the Viceroy, Lord Wellington. On 4th January 1932, Gandhi ji was arrested. The Congress passed a resolution for the renewal of civil disobedience movement. Congress flags were hoisted over government building. People took part in this movement, boycotted British goods. ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। कांग्रेस ने फ्लैग होस्ट किया गवर्नमेंट की बिल्डिंग के ऊपर, कि इंडिया का फ्लैग होस्ट किया। ऑब्वियसली कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, और तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर किया जाता है कि ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके फंड्स, उसकी बिल्डिंग्स, उसके पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स सब हड़प लेते हैं। कौन हड़प लेता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट हड़प लेती है। ग्रेजुअली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर बंद हो जाता है and it was withdrawn in April 1934. धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शांत हो जाता है। बट इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कितना असर पड़ता है? ठीक है, उसको अपना गोल जो पूर्ण स्वराज था, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, वो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे? हाँ, बहुत कुछ पड़ता है, बहुत पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। First impact is created political consciousness
and a deep sense of patriotism. Patriotism means love for the own country, nationalism in the minds of the people. लोगों के अंदर अपनी देश के लिए कुछ करने की या कुछ सैक्रिफाइस करने की एक बहुत डीप लव अपने नेशन के लिए आ गया था, जो कि बहुत ज़रूरी था लोगों के अंदर आना. सेकेंड, made people understand the significance of the principles of non-violence. They could resist violence with courage. लोगों को ये समझ में आना था और ये समझाना था कि नॉन वायलेंस मतलब कि बिना लड़ाई झगड़े के भी हम बात कर सकते हैं और अपना मुद्दा हिम्मत से काम करवा सकते हैं. थर्ड, ब्रॉट विमेन आउट ऑफ देयर होम. घर से औरतों को, विमेन को बाहर निकालना था ताकि वो लोग भी पॉलिटिकल, क्योंकि वो लोग सोचती थी कि हमारे बस का नहीं है या हमसे क्या लेना देना. लेकिन अब कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, स्वरूप रानी नेहरू, अदर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. तो ये सब इतनी ढेर सारी विमेन, 1600 विमेन अरेस्ट भी होती हैं दिल्ली में. तो इससे ये पता चलता है कि विमेन वर taking active participation in this movement, है ना. women took active participation in this movement, जो बहुत बड़ी बात है. फोर्थ, the British government was convinced. British government किसी न किसी तरीके से, मतलब कुछ हद तक convinced हो गई थी constitution reforms करने के लिए. The Government of India Act 1935 introduced होने जा रहा है, और वो भी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से. Next, the movement changed the social life of the poor and the oppressed. Yes, depressed classes जो हैं, depressed classes के बच्चों को स्कूल्स में इंटर करने को नहीं मिलता था, टेम्पल्स में जाने को नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था. वो मूवमेंट, इस मूवमेंट से ये सारी चीज़ें हट गई, गांधी जी के थ्रू हट गई. अनटचेबिलिटी रिमूव हो गई, है ना. नेक्स्ट, वाइडेन द बेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. क्या स्ट्रॉन्ग हो गया? वेराइटी ऑफ सोशल ग्रुप्स, मर्चेंट, शॉपकीपर, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, विमेन, ट्रेडर्स, एवरीबडी वॉज टेकिंग पार्ट इन फॉर दिस नेशनल मूवमेंट, फॉर दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि होना बहुत ज़रूरी था. और सबके अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग कूट कूट के भर गई थी. ये भी होना बहुत ज़रूरी था. ये भी बहुत ज़रूरी था कि इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड द क्रूएल्टी ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना. जब तक वो ये नहीं समझेंगे तब तक वो कैसे नेशनल स्ट्रगल के लिए रेडी होंगे. तो ये सारी चीज़ें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू लोगों को समझ में आ गया था. और बहुत ज़रूरी था ये एहसास दिलाना कि ब्रिटिश बहुत गलत एक्शन कर रहे हैं हमारे साथ, और हम वी कैन रूल आवर ओन कंट्री. ये समझ में आना ज़रूरी था लोगों को, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल का जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग हो गया. और ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी था ताकि आगे चल के उनको फ्रीडम मिल पाए. हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बहुत ज़रूरी था, जो कि हो जाती है. Now here the chapter is end. In the next video, I'll discuss question answers.